रिकॉर्डिंग नहीं किया हमने स्टार्ट, सॉरी। FS अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर, GL, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, सेंट्रल। या फिर हमने दो पार्ट में किया था, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल, कंपनी कोड लेवल। चार्ट ऑफ अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, कंपनी कोड लेवल हम कर रहे थे। तो 1001 वी आर क्रिएटिंग दिस, हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। ओके, कंपनी कोड है हमारा VAQ। ओके, so first only balance in local currency that we have discussed, the GLs which are having with foreign currency documents, right? So the documents which are posting with the foreign currency, so those are required the local currency in reports, right? So उनकी जो reporting part है वो हमें local currency में चाहिए. So those GLs we keep it as only balance in local currency. Tax category, the GLs which are enabled with the taxes like GST, only GST, not TDS. So this is for the indirect tax, which is called GST. Posting without tax allowed, the same GL. Sometimes we get an invoice where we are not going to charge the input. We are not getting the GST input. So in that case, the same GL we maintain with the posting without tax allowed. If we keep it this star, so there are three things here. One is input tax, second output tax, third one is all tax type allowed. Input tax is a purchase, output tax is sale, and the all tax type allowed is for both. If there is a GL which is used for calculating input and output tax both, so then we keep that GL as a tax in a tax category star, right? But because as per the chart of account or as per the accounting standards, we generally don't maintain these kind of GLs. Either that GL will belong to input tax or output tax, right? So so this GL is a salary provision GL, and we are not going to maintain this tax category here. Reconciliation accounts are the accounts which are related to customer, vendor, and fixed assets, like sundry creditors, sundry debtors, and fixed assets. So this GL is again not belong to salary provision. Then we'll go to open item management. Yes, this GL will be a open item management because we have to clear it. Line item display. Line item display means, so because in a GL we post so many line items during the day because we post so many transactions in a same GL. So if we want to see the line wise balance, then we'll maintain is a line item display, we'll maintain this. If we don't want to see the line item wise balances, we want to see the consolidated balance, in that case we will not maintain this, but 99.9% we maintain line item display. Sort key we'll discuss later. And the next tab is field status group. Field status group it belongs to provision. Then there is a GL, there is a option called post automatically only. We maintain this field for the GLs which are posted automatically, because as I said, 98% of accounting entries happens automatically in SAP, because all these entries comes from SD, MM, and PP module. So if something coming from different module which is automatically is coming in finance module, right? There is no finance module intervenes to post those accounting entries, right? So for those GLs we'll maintain with this post automatically only. We'll save it. We have created first GL. If you want to see, you click on this button, enter it, and here you can see the GL. So
first we have created this GL chart of account level, then we have created a company code level. Now we'll create directly centrally, right? So there are three different tabs here. First tab is chart of account level tab. These two are from company code level tab. So we'll create one more GL 4001. So this GL belongs to P&L GL, expense side. Create. So it is a P&L GL. So we have select P&L. We'll select this expense. Here we'll enter salary expenses. Control data. We'll select this. We'll not select salary. We don't calculate GST. Open item management. Can we make it as open item here? Yes, we can, sir. Okay, why? Because say when salary becomes due, and if we pay it, say in the next month, Okay. so we would be able to see the outstanding balance. So what accounting entry you will do once you make the payment against salary? Once we make the payment against salary, so it will be we will debit salary expense account. Okay. To bank, salary to bank. Okay. And once you make the provision, what would be the accounting entry? Okay, so if we make the provision, that is if we make it Provision to for salary salary payable account debit to salary. to salary. So provision for salary is a liability account or asset account? It's a liability. Salary payable, you're saying, sir? Because I am saying provision or payable are same, or is Yeah, it payable. Yes, it's same. it's same. So what accounting entry you said? So Provision first, for salary account debit to salary. So salary is a P&L account or balance sheet account? Salary is a P&L account. P&L account. So is it a revenue account or expense account? Expense. Expense So hoga. expense. Why are Expense. you crediting the expense? That expense. So why are you Expense. crediting the expense? So salary. So when we do the first entry, that is the provision entry. Okay. At that time, we debit the. Just a second, sir. Hmm. The first entry would be salary payable debit to salary account. Okay. So that means you are crediting the salary. So you are booking the revenue against the salary. One sec. No, so it'll be salary account debit to salary payable account, and then when we will pay it, it will be salary payable account debit to bank. Okay. So where is the salary account then? So you said, so we'll clear the salary account. So do we click on this open item or not? On salary account GL 4001. Yes, sir. Why? Where are you going to clear it, this salary account? So when it will get cleared? So we will be debiting salary सर account. सैलरी अभी हम ओपन आइटम को हम टिक करेंगे क्योंकि जो सैलरी है वो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होगा क्योंकि हम इसके लिए प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं. There are two things. दोनों को मिक्स मत करो. सैलरी और सैलरी पेबल को दो अलग चीजें रखो. सैलरी Yes, इज ए sir. बैलेंस शीट और सैलरी पेबल इज ए Salary is सैलरी P&L. पेबल इज अ बैलेंस शीट. अच्छा, और सैलरी Is P&L. सो Yeah. आप इसको ओपन आइटम सैलरी को आप ओपन आइटम रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, सैलरी को नहीं रखेंगे, सैलरी प्रोविजन को रखेंगे. क्यों नहीं रखेंगे? So because क्योंकि ओपन आइटम में तो P&L की आइटम आएंगी ही नहीं ना. हाँ, सर एक्सपेंस है तो फिर वो हम नहीं ओपन आइटम नहीं करेंगे. होता है. राइट, देखो मैंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर. Yes, Right. sir. सी P&L items cannot be open item. Okay, so we are not okay. Let's maintain. देखते हैं क्या होता है. एरर शो करेगा. हाँ,
यहां पर देंगे एक्सपेंस, सेव करते हैं सी। ओके, मेंटेन नहीं करेंगे। ओके राइट, ये तीनों चारों पॉइंट्स को क्लियरली समझ लो, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें ओपन आइटम मैनेजमेंट। एंड दिस पार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है एसएपी में, ओपन आइटम मैनेजमेंट के ऊपर। देन और इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसको लेके। 2001 बैलेंस शीट, कैन वी कीप इट एज P&L दिस 2001 GL? किस लिए था 2001? क्यों मेंटेन किया था 2001 का? क्या है? एसेट्स का था ना, एसेट्स का। एसेट्स था। कैन वी कीप इट एज P&L? नो सर, बैलेंस शीट। ओके, हम रख सकते हैं बट होगा ये बैलेंस शीट, बट पॉसिबिलिटी है, ये मिस्टेक अलाउ करता है एसएपी। बैंक अकाउंट, कंट्रोल डेटा, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, ओपन आइटम मैनेजमेंट रखेंगे, इसको लाइन आइटम डिस्प्ले रखेंगे। क्यों रखेंगे हम ये बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसको ओपन आइटम क्यों रखेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि इसका भी आगे बैंक रिकंसिलिएशन होने वाला है इस बैंक अकाउंट का, तभी हम लोग इसको भी रखते हैं। बैंक सेव। तो हमारे पास यहां 3 GLs है। ठीक, बैंक अकाउंट, इसको अगर आप सॉर्ट करना तो सॉर्ट कर, सैलरी प्रोविजन, बैंक अकाउंट एंड सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। सो हमने ये 3 GLs क्रिएट किए हैं। विल क्रिएट वन मोर GL 4001, क्रिएट देयर 4002, expense, consultancy expense, this expense, ओके 4001 में भी एक चेंज करते हैं। तो ये हमने अभी 4 GLs क्रिएट किए हैं। ये इसका लिस्ट है GLs का। सॉर्ट करने के लिए यहां से सॉर्ट होगा, इसको आप क्लिक कर देंगे ऊपर। सो सैलरी प्रोविजन, बैंक, सैलरी एक्सपेंस एंड कंसल्टेंसी एक्सपेंस, ये 4 GLs हमने क्रिएट किए। अब हम इनकी फाइनेंशियल्स पास करेंगे। ओके, सो ये अगर आपको फंडामेंटली समझ में आ गई चीजें, तो इसमें काफी हेल्प होगा आपको आगे एसएपी की अकाउंटिंग समझने में। सो अब हम ये अकाउंटिंग एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो हम जेवी पास कर रहे हैं अभी, जेवी हम जीएल में पास करेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कुछ ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं एसएपी में। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड्स हम यूज कर सकते हैं /O, क्या होगा स्लैश भी नहीं यूज होगा, /O and /N, /O and /N। अब होता क्या है कि एसएपी के अंदर जो ये स्क्रीन आपको फ्रंट एंड पे दिखाई दे रही है, एक्चुअली ऐसे आप 6 स्क्रीन्स ओपन कर सकते हैं पैरेलली। देखिए अभी कितनी स्क्रीन्स ओपन है, अभी एक ही स्क्रीन ओपन है। ये तो हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के लिए है। सो इसको हम लॉगिन करते हैं। 1, ये हमारी सेकंड स्क्रीन ओपन हो गई, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, सी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसएपी जीयूआई सेशन रीच्ड। सो अब देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 स्क्रीन मैक्सिमम स्टैंडर्ड ओपन हो सकती हैं। अगर इसमें कुछ हम टेक्निकल लोगों का हेल्प से हम 16 स्क्रीन तक भी ओपन कर सकते हैं पैरेलली। तो अब होता क्या है कि अगर आप सपोज ये है हमारी होम स्क्रीन, बेसिक स्क्रीन, यहां बैठ के अगर आप कोई भी टी कोड डालेंगे FS00, ये GL क्रिएट करने के लिए होता है, तो सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है। बट यहां पर अगर आप FS00 डालेंगे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। यहां पर आपको /n या /o यूज करना है। /n में क्या होता है, अभी देखिए कितनी स्क्रीन ओपन है, एक ही स्क्रीन ओपन है। हम यहां पर /o FB50 करते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इस स्क्रीन को एज इट इज रखेगा और नया स्क्रीन ओपन कर देगा। ये 2 स्क्रीन ओपन हो गए देखिए। अगर हम इस स्क्रीन पे /n करेंगे तो ओवरराइट कर देगा इसको। अब देखते हैं कितने स्क्रीन ओपन है। ये देखिए अभी भी 2 ही है, तो उसने एक स्क्रीन को ओवरराइट कर दिया। ओके, तो अब हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। SAP की फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग। FB50 डबल क्लिक, कंपनी कोड चेंज करते हैं यहां से VAQ, डेट डालेंगे 31/05/2020। यहां पर करेंसी दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये जो करेंसी है ये लोकल करेंसी है अभी जो स्टैंडर्ड आ रही है, बट आप इस करेंसी को चेंज कर सकते हैं। हम लोग आगे चल के पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग डेट भी, डॉक्यूमेंट डेट भी। अच्छा, डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट में डिफरेंस क्या होता है? Sir, document date would be like if there is an invoice or a check, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है जिस दिन वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस रेज करी है या उस चेक पे जो डेट लिखी हुई है, और पोस्टिंग डेट वुड बी जिस डेट पे हमने उस पर्टिकुलर इनवॉइस को सिस्टम में एंट्री करी है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके जो चेक के ऊपर जो डेट रहती है वो डेट क्या वही डेट होती है जिस दिन आपकी बुक्स में पोस्ट एंट्री हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है? नो सर, डिफरेंट होती है। नहीं, डिफरेंट होती हाँ, डिफरेंट होती है सर। डिफरेंट होती है। नहीं, अलग होती है सर। मतलब आप अगर सपोज आज फाइनेंशियल एंट्री पास कर रहे हैं तो चेक आप फ्यूचर का बनाते हैं। Sir, say if we have received a check from someone. नहीं, चेक रिसीव नहीं किया, मैं चेक क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। आपको पेमेंट करनी है, आपने चेक बनाया, आपने सपोज, अच्छा पहले चेक बनाते हैं पहले फाइनेंशियल एंट्री पास करते हैं? पहले चेक बनाते हैं सर पहले चेक बनता है। ओके, उस के ऊपर जो डेट एंटर करते हैं, राइट, वो डेट आपकी वही डेट होती है जिस दिन आप एंट्री पास कर रहे हैं उसकी, या ये डेट अलग होती है? सर जिस दिन चेक क्लियर होगा उस पोस्टिंग डेट उस दिन की होगी। तो इसका मतलब अगर चेक 3 महीने क्लियर नहीं होगा तो आप पोस्टिंग ही नहीं करेंगे उसकी? हाँ नहीं सर, जब हम कोई चेक इशू करते हैं एंड जब तक वो बैंक अपने हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब वो चेक क्लियर होगा। नहीं, अगर चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो सपोज किसी ने लेके अपने पास रख लिया, वो लगाया ही नहीं बैंक में, अब क्या होगा? सर जब हम पेमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने सपोज एक इनवॉइस क्रिएट किया हुआ है वेंडर का, आप उसकी पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक, उसके लिए आपने एक चेक बनाया। सर हम एंट्री करेंगे, बट क्या कहते हैं हमारी तरफ से तो सर एंट्री होगी, उसकी तरफ से हो ना, हमें उस मतलब उसकी क्यों बात कर रहे हैं? उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अपनी बात कर रहा हूँ। सर जो हमने इनवॉइस रेज करी है, इनवॉइस हो चुकी है, हाँ वही सर, दैट इज व्हाट, जो इनवॉइस हमारे पास रेज होके आई है ना सर, उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है, राइट? बिल्कुल ठीक है, राइट। सो जो इनवॉइस रेज हुई है उसकी हमने एंट्री कर दी, तो हमारी एंड उसके बाद हमारी पेमेंट ड्यू हो गई। हाँ राइट। उसके बाद सर चेक का मेंशन तो तभी होगा जब वो सर चेक लगेगा, जाके क्लियर होगा, उससे पहले तो एंट्री नहीं करेंगे शायद हम। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ चेक लगा ही नहीं तो क्या होगा? तो हमारी एंट्री मतलब वो
इसे इनवॉइस शायद हम अलग ऑप्शन में डालेंगे, आई थिंक क्लियरिंग का कुछ बीच में होगा, नहीं नहीं, मतलब ऐसा उस कुछ चीज नहीं को। है। अकाउंटिंग को ही भूल गए हो। अच्छा एक चीज बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है? सर अगर आप अगर चेक की पेमेंट ही आप एंट्री उसी दिन पास करेंगे, चेक की जिस दिन वो चेक क्लियर हो जाएगा, तो फिर बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? सर राइट सर, बुक्स में हमारे जो मैं आपको एक ऑप्शन दे, मैं आपको एक अपना थियोरिटिकल एक पार्ट बताता हूँ जो हम आज तक पढ़ते आए हैं बुक्स में। चेक इशूड बट नॉट क्लियर येट, इसका क्या मतलब है? चेक इशू तो राइट हो गया बट क्लियर नहीं हुआ था, हम उसको इशू करने का क्या रिकंसाइल मतलब? बैंक करेंगे। में क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, इशू करने का क्या मतलब है? सर आपने हमारी तरफ से हमने चेक मतलब जो भी है वेंडर को अगर है तो हमने अपनी तरफ से वेंडर को चेक पेमेंट कर दी है, बट आपने चेक हमारे पेमेंट बैंक कर, में से अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, चलो उस चेक पेमेंट का, जब आपने चेक की पेमेंट की, वेंडर को आपने कुरियर किया चेक, क्या अपनी सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन करोगे आप? हाँ, सर जो आपका क्वेश्चन था कि हम बुक्स में क्या मतलब पोस्टिंग डेट क्या डालेंगे और डॉक्यूमेंट डेट, जैसे आप, अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। सर उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। नहीं नहीं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्योंकि पहले बेस क्लियर होना चाहिए। तो सर यू आर राइट, मतलब मेरे को समझ आ रहा है आप क्या पूछ रहे हो, बट मेरे को ना आंसर नहीं करना आ रहा, बिकॉज बैंक मैं रिकंसिलिएशन आपसे सर हम बहुत तभी करते सिंपल हैं सी जब चीज पूछ हमारा रहा हूँ। बैंक बैलेंस आपने डिफर करता है हमारे बुक बैलेंस है। आपने अपने वेंडर को चेक इशू कर दिया, कुरियर कर दिया, क्या आप अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे? यस सर करेंगे, सर क्या एंट्री करेंगे। करेंगे? करेंगे सर सर। करेंगे। अच्छा, अब जो चेक की डेट होगी, क्या एंट्री की वही डेट होगी? उसी रेट की होगी सर। सेम डेट होगी सर हाँ जिस दिन चेक इशू किया है। और अगर बाय चांस चेक क्लियर नहीं होता ना, तो हम उसको फिर बैंक रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन पे जाकर हम उसे रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल करेंगे, Actually, जब राइट। तक वो नहीं होगा वो अनरिकंसाइल्ड रहेगा हेलो, वो। जब तक वो हेलो, चेक यू टू वो टेक पेमेंट। अनरिकंसाइल्ड आइटम रहेगा आपके पास। तो अब यहाँ डाउट कहाँ है? तो इसका मतलब जो आपकी पेमेंट का जो पोस्टिंग है, पेमेंट की पोस्टिंग में जो उसकी डॉक्यूमेंट डेट है और जो पोस्टिंग डेट है, क्या वो डिफरेंट होगी या नहीं होगी पेमेंट के टाइम पे? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। सेम रहेगी, इसका मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म। अब आप मुझे ये बताइए कि अकाउंटिंग में कहां पर इन दोनों डेट्स में डिफरेंस आएगा? जब हम रिसीविंग करेंगे, आई जब थिंक हम रिसीव करेंगे सर कुछ। जब वो क्लियर होगा क्या रिसीव चेक। करेंगे? सर जब हम क्या जैसे रिसीव करेंगे? हेलो, सर जैसे कस्टमर का हो गया। अच्छा, चलिए कस्टमर का चेक आ गया आपके पास, उसमें हाँ, डॉक्यूमेंट डेट जब क्या डालेंगे? जिस दिन वो आया है उस दिन तो शायद हम, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन हम पोस्ट करेंगे उस दिन की हम पोस्टिंग डेट डालेंगे, आई डॉक्यूमेंट थिंक। डेट तो डॉक्यूमेंट वो डेट जो क्या होगी चेक पे उसकी? डेट लिखी आ रही है वही डालेंगे। तो अच्छा, पोस्टिंग डेट क्या डालोगे? सर जिस दिन हम उसको पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, सर जिस दिन पोस्टिंग हो रही है, जिस दिन हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस केस में भी दोनों डेट सेम ही रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। डॉक्यूमेंट डेट ओनली। यस, क्योंकि आपको चेक की डेट से कोई लेना देना नहीं है कस्टमर के केस में। आपको जिस दिन वो चेक मिला वही आपकी डॉक्यूमेंट डेट भी है और पोस्टिंग डेट भी है। राइट सर, उससे ये पता लगेगा कि कितने दिन में या कितने टाइम पीरियड में अब कस्टमर ने हमें पेमेंट करी है। पॉइंट ये है कि आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंस में जिसमें इन दोनों डेट्स का एक्चुअल कोई रेलेवेंस होता है डिफरेंट होने का? सर जिस दिन चेक क्लियर होता है। उससे आपकी बुक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है जिस दिन क्लियर हुआ? वो तो जब बैंक रिको करोगे तब इम्पैक्ट आएगा। या क्यों? अब ये बताइए कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है फाइनेंस में जिसका एक्चुअल रेलेवेंस है इन दोनों के डिफरेंट डेट का? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक सर जीएसटी के केस में। किस केस में?
जीएसटी के केस में, मतलब अगर जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं तो नो, जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन वही डालेंगे आप उसमें भी। एक्चुअली जब आप वेंडर की इनवॉइस रिसीव करते हो, जब पोस्ट करते हो, वहां पर डिफरेंस है। एक्चुअली उसका रेलेवेंस वहां है। जब आप वेंडर की इनवॉइस लेते हो, आप जिस दिन वेंडर ने क्रिएट किया वो आपकी डॉक्यूमेंट डेट है, जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो वो पोस्टिंग डेट है। इसका डिफरेंस क्यों है ये? बिकॉज आपकी जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट डेट या पोस्टिंग डेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। अब आपके वेंडर ने आपको, सपोज आपने आज ऑनलाइन कोई एलईडी परचेज किया, एलईडी आने में 5 दिन लगा, उन्होंने पहले दिन वो इनवॉइस क्रिएट किया, उसको डिलीवर किया, तो जो आपका 1 जून का वो डॉक्यूमेंट डेट होगा, 5 जून का वो पोस्टिंग डेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है आप क्रेडिट पे ले रहे हैं उनसे, पेमेंट आपको 30 डेज के बाद करनी है, तो आपकी जो पेमेंट टर्म्स डिपेंडेंट है वो या तो डॉक्यूमेंट डेट पे डिपेंडेंट है या पोस्टिंग डेट पे डिपेंडेंट है। राइट राइट सर। एक और डेट होती है एसएपी में, एंट्री डेट। एंट्री डेट एक्चुअली क्या है, एसएपी के अंदर ये दोनों डेट्स मैन्युअली चेंज हो सकती हैं। मतलब आप 4 जून में बैठ के आप 1 जून की पोस्टिंग डेट डाल सकते हैं एसएपी में, ये ऑप्शन है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे भी डॉक्यूमेंट डेट, सपोज मैंने कुछ भी परचेज किया तो मैंने उसकी अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया है, ठीक है, तो मैं मतलब जैसे फर्स्ट एंट्री मैंने 1 लाख की आइटम है तो मैंने 50,000 की पहले पेमेंट कर दी, तो मैं पोस्टिंग डेट में जो 50,000 वाली डेट है वो डाल दूंगी। यस। और मैं नेक्स्ट मंथ में 50,000 और पे कर रही हूँ, तो फिर तब मैं पोस्टिंग डेट कौन सी डालूंगी? जब आप नेक्स्ट मंथ में जो भी करोगे वो एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग होता है रियल टाइम पोस्टिंग्स। जो फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है वो सिस्टम में कैप्चर करते हुए जाइए। राइट जो नहीं हो रहा है वो कैप्चर नहीं होगा। जो प्लानिंग है वो एसएपी के अंदर एक्चुअल नहीं है, वो अकाउंटिंग में कोई एक्चुअल नहीं है। वो अकाउंटिंग का मतलब ही रियल टाइम होता है और उतना होता है जितना फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो आप अगर 50,000 रुपीज नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे तब तक वो 50,000 रुपीज पार्शियली ड्यू रहेगा आपका। तो पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट मंथ 50,000 रुपीज से। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट का पर्पस है जिस दिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है, और जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है वो इस डेट पे होता है, पोस्टिंग डेट पे। इन दोनों डेट का फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। फाइनेंशियल इंपैक्ट पोस्टिंग डेट से होता है। तो हमारी जो एंट्री डेट है, एंट्री डेट सर्वर डेट होती है। पोस्टिंग डेट जो एक्चुअल पोस्ट हो रहा है जिस दिन। अब ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है इस डेट के अंदर। आप आज बैठ के 3 दिन पहले की पोस्टिंग भी कर सकते हैं अगर वो पीरियड ओपन है तो। डॉक्यूमेंट डेट ये हमेशा आपकी प्रीवियस डेट्स ही होती हैं, या तो करंट और प्रीवियस, ये फ्यूचर डेट नहीं हो सकती। अच्छा, अब पोस्टिंग डेट सपोज 4 जून है, क्या डॉक्यूमेंट डेट 5 जून हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। लेकिन एसएपी में ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं, और एसएपी में ऑप्शन है इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन एंट्री डेट कभी चेंज नहीं हो सकती मैनुअली, इस डेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 डेट्स हैं, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड एंट्री डेट। इसको डिटेल में फिर हम फिर से डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा हमारा। अकाउंट, यहां पर हम जीएल क्या लेंगे? हम लेंगे 2 जीएल,
एक एक्सपेंस का, सैलरी एक्सपेंस का, और एक सैलरी प्रोविजन का, 4001 और 1001। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अब एसएपी के अंदर डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है एस और एच। अगर आपको ये यहां पर शो नहीं हो रहा है एस और एच, तो आप यहां जाएंगे ऑप्शन में, विजुअलाइजेशन में इन दोनों को सेलेक्ट कर देंगे, इन दोनों को, ये आपको फिर शो होगा ना। यहां पर हम अमाउंट लेते हैं 10,000। देखिए क्या बोल रहा है सिस्टम, पीरियड 03 एडजस्टेड इन लाइन विद पोस्टिंग डेट 31/5/2020। ये वार्निंग है, येलो कलर है, वार्निंग है, एंटर करते हैं। देखिए अब सिस्टम एरर क्या दे रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सर ये टॉलरेंस रेंज की वजह से है। हाँ, OBA4 कंपनी कोड सर्च करते हैं, पोजीशन में जाके कंपनी कोड, सॉरी VAQ, डबल क्लिक। इस सर हमने यहाँ पे 1000 डाला हुआ था। यस, ठीक है, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे, बैक आएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, फिर से एरर है। ये बोलता है अकाउंट दिस कैन ओनली बी पोस्टेड टू इंटरनल इन कंपनी कोड दिस /OFS00। GL में चलेंगे, GL उठाएंगे 1001, इसको चेंज मोड में जाएंगे और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आएंगे। ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है। मैंने बोला ना कि ये ऑटोमेटिकली पोस्ट जो GL होने हैं वो GL पे टिक रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। एंटर। अब देखिए, अब यहाँ कोई एरर नहीं है। अब आप ये बताइए इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। नंबर 1 तो चलिए अकाउंटिंग तो हमें समझ में आ गया, इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा। इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा। AB और ऐसे। यस, ऐसे। देखिए यहां साफ दिख ही रहा है, ठीक है। नंबर 2, इसकी अकाउंट टाइप्स क्या होंगे इसके। एस और नीचे एस। पोस्टिंग कीज क्या होंगी। चीटिंग अलाउड है। So we referring to the Excel sheet only. मैं समटाइम्स जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि पेज टर्न हो रहा है अंदर, वहां अलाउड नहीं होता चीटिंग। सर 40। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इतनी देर क्यों लग रही है जब आपको पता है ऐसा और ऐसा तो 40-50 होगा और क्या होगा। 40-50 यस। इसका मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आपने यहाँ डिसाइड कर ही लिया एस और एस है, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है कुछ। ऑप्शन तो वहां है जहां पर D K, वहां पर ऑप्शन है। राइट सर, एस के रेफरेंस में सर 40 एंड 50 ही है। ये देखिए, ये रहा। राइट सर।
ओके, तो चलिए पोस्टिंग को हम अब एसएपी में क्या ऑप्शन है, एसएपी के अंदर आप डॉक्यूमेंट को फाइनेंशियल हिट करने से पहले उसको सिमुलेट करके चेक कर सकते हो। सिमुलेट करना होता है कि आप पहले उसको बैकएंड पे एक बार रिव्यू कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, उसके बाद उसको फाइनेंशियल हिट करोगे, तो इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता सिमुलेट करने का। यहां पर क्या बोल रहा है 40 एंड 50, इसके बाद यहां पर वो फील्ड नहीं आ रही है, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, अकाउंट टाइप्स नहीं आ रहे हैं, अकाउंट टाइप्स भी हम यहां पर लेके आते हैं। ये अकाउंट टाइप्स है, ये डेबिट क्रेडिट है, ये देखिए डेबिट क्रेडिट एस और एच, अकाउंट टाइप एस और एस, और पोस्टिंग की 40 एंड 50 और जीएल 4001 एंड 1001, डेबिट एंड क्रेडिट सेव करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, चलिए मैं पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब एक चीज बताइए, इसका जब पोस्टिंग होगी तो इसकी नंबर सीरीज क्या जनरेट होगी, इसका नंबर क्या आएगा और किस बेसिस पे आएगा? सर डॉक्यूमेंट नंबर रेंज के हिसाब से। हाँ, वो किस बेसिस पे डिफाइंड होती है डॉक्यूमेंट नंबर रेंज? किस बेसिस पे डिफाइन होती है? डॉक्यूमेंट नंबर रेंज किस लेवल पे डिफाइन होती है? कंपनी कोड लेवल पे सर। कंपनी कोड लेवल पे। और कंट्रोल कहां से होती है? डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से सर। डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग। तो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो नंबर सीरीज लगी होगी, देखिए मैं टी कोड से ही जा रहा हूं अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में, एस ए डॉक्यूमेंट टाइप सर्च करते हैं, ये रहा, डबल क्लिक करते हैं, नंबर क्या लगा हुआ है 01, नंबर सीरीज में चलते हैं, VAQ देखते हैं, इंटरवल्स में आते हैं, नंबर क्या है अभी यहाँ पर 01 में 0, तो पहला नंबर ये जनरेट होना चाहिए। पोस्ट करते हैं, देखिए नंबर। अब बैक आते हैं, इस नंबर में वापस जाते हैं, अब देखिए क्या हुआ यहाँ। एनआर स्टेटस होता है नंबर रेंज स्टेटस। नंबर रेंज स्टेटस इस टाइम ये 9 कैरेक्टर्स का नंबर है, बिकॉज स्टार्टिंग की 0 रिमूव कर दिया सिस्टम ने। राइट, चलिए तो बैक करते हैं। अब हम इनको रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। रिपोर्ट एसएपी के अंदर जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले का जो टी कोड होता है FBL3N होता है। अगर हमें टोटल बैलेंस चेक करना है, राइट, तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं FBL3N, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर,
अकाउंट FVL3N, एंटर। यहां पर हमें कौन सा GL देखना है? हमें यहां पर सबसे पहले GL देखना है 1001। आप मुझे बताएंगे 1001 GL इन तीनों में से किस स्टेटस पे होगा? इन तीनों में से किस स्टेटस पे होगा? So open assets. कौन सा होगा? So open item. ओपन आइटम होगा। Right. ओके, ये देखिए क्यों होगा? So because इसको अभी तक हम सैलरी प्रोविजन, तो इसको सर हमने अभी तक नहीं, ये ओपन आइटम हुआ क्यों? ये ओपन आइटम क्यों बनाया गया? क्यों, मतलब कहां से ये एक्चुअली ओपन आइटम GL? सर क्योंकि हमने इसको प्रोविजन क्रिएट किया था सैलरी के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड वी हैवंट क्लियर्ड इट। यू हैवंट क्लियर्ड इट, ओके, बट अबाउट दिस, ये किस स्टेटस पे होगा? This is expensive. इनमें से कौन से स्टेटस पे होगा? हम्म, 4001 GL किस चीज का है? Expenses. एक्सपेंसेस का। इनमें से किस स्टेटस पे होगा? क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। So this is not an open item. Those are open items Posted and item. balances which are not maintained as open item. Right. एक्चुअल GL ओपन आइटम होता है जब उसको ओपन आइटम मैनेजमेंट रखा गया है। इस GL को ये पोस्टेड आइटम दिखा रहा है और इस GL को ये ओपन आइटम दिखा रहा है बिकॉज GL पे हमने ओपन आइटम का टिक लगाया था। ये पर्पस था इसके ओपन आइटम का। आप लोग इतना करो, हम लोग इसको फिर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना, मेरा फोन बाबा लैग कर रहा था, इस वजह से मेरे को दूसरे ठीक है, ज्वाइन करना पड़ा है। भेज देता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया, पीछे सब कुछ छूट गया, बाबा लैग हो रहा था। ठीक है, करिए इसको, कोई Right. डाउट है तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, Right. ओके, बाय। बाय।